ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ଅଙ୍କନ 4 ପଢ଼ିବା। या ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କନ 1, 2, 3 ଏ ତିନିଟା ଅଙ୍କନ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାଠ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ହିସାବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେମାନେ ଅଙ୍କନରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ଅଙ୍କନ ଯଦି ଶିଖିଯିବେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଗଣିତର କିଛି ଅଙ୍କ କଷାକଷି ନାହିଁ, କିଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗଣିତକୁ ତୁମେ ଗଣିତର ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଙ୍କନରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଅଙ୍କନ 4 ପଢ଼ିବା। ଅଙ୍କନ 3 या ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେ ପରିସୀମା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଆଉ ଦୁଇ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନା ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଜି ଅଙ୍କନ 4 ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଅଙ୍କନ 4। କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଦୁଇଟି ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ତୁମର ସର୍ବସମତା କଥା। ସର୍ବସମତାରେ এই ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବାହୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁ ଆଉ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବସମତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସପୋଜ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ଏକା ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ସର୍ବସମତା ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ ହେବ। ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା। ଦେଖ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜରେ କେମିତି ଏଟା ହେଉଛି। ଦେଖ ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ AB ସ୍ମଲ୍ c ଏକକ ଦେଇଛି, BC ଦେଇଛି ସ୍ମଲ୍ a ଏକକ। ଦେଖ AB ବାହୁ ଦେଇଛି, BC ବାହୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଇଛି C କୋଣ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଯେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା କେମିତି କରିବା। ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ AB ଦେଇଛି C ଏକକ, BC ଦେଇଛି A ଏକକ, C କୋଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି BC ନେଇଯିବି A ଏକକ। BC ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖ BC ନେଇଯିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ A ଏକକ। ତାପରେ ଏଠି C କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। C କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ବଢ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ AB ଆମେ B ବିନ୍ଦୁରୁ ନେବା, B ବିନ୍ଦୁରୁ ନେଇ ଚାପ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶରେ ଆମେ A ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। A ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାପଟା ମଧ୍ୟ ACକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରେ, ସେଟା A ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି। ଯେଠି ଯେଉଁ Bରୁ A ଚାପ ହେଲା, ସେ ଚାପଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ତାହା ACକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରେ, A ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ABକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ A ଡ୍ୟାସ୍ Bକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ABC ଆଉ A ଡ୍ୟାସ୍ BC। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିବା। ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହିରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ସ୍ମଲ୍ a 3.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍ମଲ୍ c 4.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ C କୋଣ ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାର ଗୋଟେ ରଫ୍ ଚିତ୍ର କରିବ। ତୁମେ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ। ଅଙ୍କନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖେଇବି ପେପର ଉପରେ, ରଙ୍ଗୀନ ପେପରରେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ନେଇଛି, କାରଣ ତୁମେ ସେଠି ପେନସିଲ୍ରେ ତୁମେ କରିବ, ସାର୍ପ ହେଇଥିବ ପେନସିଲ୍ଟା, ଆଉ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମେ
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି BC ନେଇଯିବି କେତେ 3.4 BC ନେଇଯିବି 3.4 ଆଗେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାଟିବି BC ଆଗେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଲି ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ 3.4 ନେବି 3.4 ମୋ ସ୍କେଲ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମର ସ୍କେଲ୍ରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 3.4 ମୁଁ ନେଇଗଲି ତା ନାଁ ଦେଲି BC ଦେଲି 3.4 ତାପରେ C ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବି 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା ଆଗେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ନେବି ତାପରେ ତାର ଅଧା ମୁଁ କରିବି 60 ର ଅଧା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ନେବା AB ବାହୁ 4.2 4.2 ଦେଖ ଆମେ ନେବା 4.2 4.2 ସ୍କେଲ୍ରେ ଆଗେ ମାପିକି ନେବ ଠିକ୍ ମାପଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର 4.2 ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପାଇଲି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉନି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି ତାର କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି A ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ AB କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା AB की যোগ କରିଦେବା ଏଠି ଦେଖ ଯେହେତୁ AB ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଯେଉଁ କଲି ସେଇଟା ହେଉଛି AC AB ସ୍ମଲର ଦେନ୍ AC ତେଣୁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଇବ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଅ ABଟା ସାନ ହୋଇଯାଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କଲି AB ଏଠି ଆଉ ପାଉନାହିଁ ଦେଖ ଯଦି ପାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ABଟା ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ପାଉନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବା ନାହିଁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ हाँ आउ गोटे कथा देख ये BCटा मध्य छोट हो जाऊँगी एबीटा BC ठारू बड़ हो जाऊँगी कारण BC ठारू जदि आमर एबीटा BC ठारू छोट होता तेना BC मझे रही था या मझे रही था तेणु छेद करता तेणु BC ठारू एटा बड़ हो जाऊँगी सेटा भी गोटे रिजन तेणु जहाँ तुम अंकन कर तुम अंकन कला तापर तुम पाइब त्रिभुज तेणु उद्दिष्ट त्रिभुज जोटा से पाइब नेक्स्ट आम परवर्ती प्रश्न को जीवा देख परवर्ती प्रश्न त्रिभुज ABC अंकन कर स्लाइड की देख जार स्मॉल c 8 सेंटीमीटर आउ स्मॉल a 6.9 सेंटीमीटर आउ ए कौन हो 60 डिग्री एटा को अंकन करवा किपरि अंकन करवा देख मु बर्तमान अंकन करके तुमको देखैबी पिला माने जे त्रिभुज अंकन करने पूर्व तार गोटे रफ डायग्राम करिवो जेमती मु चित्र रे करिछि देख ABC त्रिभुज तार ए कोण 60 डिग्री आउ स्मॉल c नहीं AB आउ BC जगह स्मॉल ए नहीं तुम स्मॉल c 8 सेंटीमीटर स्मॉल ए 6.9 सेंटीमीटर ए कोण 60 डिग्री तेणु देख मुझे केमती करी चित्रटी को जे प्रथमे कौन करवा आम स्मॉल c 8 सेंटीमीटर नवा आगे गोटे रेखाखंड देली तापरे मु कंपास साहाय्य 8 सेंटीमीटर माप करी देख 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नहीं गली ता ना देली BC तापरे
BC नहीं सारा पर आम कौन करवा ना ता BC न नहीं कि मुझे AB कहीं मुझे कर देख ये AB नेबी आउ ये ए कोण 60 डिग्री करी ए कोण रे मु 60 डिग्री कोण अंकन करी देख 60 डिग्री करुच्ची गला 60 डिग्री तापर बढ़े देली देख जोग करके बढ़ेदेवी बर्तमान एटा बढ़ी सारा पर पुणी BC ने भी 6.9 BC 6.9 नहीं कि चाप काटी देख 6.9 मुझे भी 7 पाखपाखि 6.9 नहीं कि देख ये आसी जस्ट टच करुच्ची तेणु आम से जो टच करुच्चे से नहीं जावा दुईट बिंदु एक्चुअली टच करुच्ची तेणु यहाँ टी मोटा हो जना पड़ना ये गोटे नहीं जावा ये गोटे नहीं जावा ये दुईट बिंदु आसूची कि जेहेतु देख गोटे बिंदु मोर टच करुच्ची तुम जदि दुईट बिंदु है तुम दुईट बिंदु नब मो चित्र अनुसार से गोटे बिंदु टच करुच्ची तेणु मुझे गोटे बिंदु देली सी देख बर्तमान त्रिभुज ABC एक आवश्यक त्रिभुज तुम निज अंकन कर देख कौन हो केमती अंकन कली मुझे कहीदे आउ थे प्रथम पिला माने कौन कर तार रफ चित्र कर रफ चित्र कर सारापर से रफ चित्र को देखिकी कर रफ चित्र आमर AB अच्छी केते ना 8 सेंटीमीटर आम AB 8 सेंटीमीटर मु अंकन कली AB अंकन कर सारापर ए कोण रे केते कोण अंकन करी 60 डिग्री 60 डिग्री कोण तुम जानिच 60 डिग्री अंकन करी बढ़ेदेवी बढ़े सारापर तापर BC जोटा देती से 6.9 मु नहीं मु काटि काटिले से जो ए रु जो कोण रु जो वर्धित जाइए अंश ताकू C बिंदु छेद कर तेणु मु पाईगली CBA ये एक्चुअली देख तुम मोर जो अंकन करची गोटे बिंदु छेद कर दुईटी अच्छी किंतु जना पड़ूना आउ जेहेतु यहाँ टी मोटा होती तुम्हें ताको पेनसिल रे अंकन कर ठीक परिष्कार जना पड़ो जदि दुईटी बिंदु है दुईटी सी गोटा को सी आ गोटे C डैश दब रफ चित्र में कर C डैश तेणु ये जदि C डैश है C डैश कर आम जा परवर्ती प्रश्न को पिला माने देख परवर्ती प्रश्न को आम जा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देख ये सबू एका प्रकार प्रश्न जे ये अच्छी त्रिभुज ABC अंकन कर जार स्मॉल a 8 सेंटीमीटर स्मॉल b 7.1 सेंटीमीटर आ B कोण 60 डिग्री यहाँ अच्छी तेणु आम किपरि अंकन करवा प्रथमे रफ डायग्राम करवा रफ चित्र देख ABC रफ चित्र अच्छी ABC एठी BC स्मॉल a एकक जोटा कि 8 सेंटीमीटर नेबी स्मॉल b जोटा 7.1 सेंटीमीटर अच्छी आउ B कोण 60 डिग्री तेणु तुम चित्र अंकन करवा पूर्व आगे रफ डायग्रामटा करदेव तापर अंकन कर बर्तमान मुझा को अंकन करी तुम टे देख केमती मु अंकन करुच्ची प्रथमे कौन कर ना यहाँ को आगे BC नहीं जीव 8 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर नहीं जीव मापिक नब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नहीं कि चाप काटब रेखाखंड पाइब ता ना देदेव C आ B C आ B देली B बिंदु रे केते डिग्री कोण अंकन करी 60 डिग्री देख मुझे बढ़े दूची 60 डिग्री कोण अंकन करी 60 डिग्री कोण सब सहज तेणु
60 डिग्री कोण अंकन कली 60 डिग्री कोण अंकन कर सारा परे तापरे मु कौन करी एससी एससी जोटा अच्छी स्मॉल भी 7.1 मुझे भी 7.1 7.1 ने भी देख 7.1 ये देख पिला माने ये दुईट बिंदु केमी छेद करुच्ची परिष्कार जना जाऊँगी बर्तमान मुझे अंकन करदेली ये दुईट बिंदु छेद कला गोटे हूँ ए आ गोटे देवी ए डैश तेणु ये चित्रटी आम प्रकृत में दुईट बिंदु पाइले तापर आम जोग करवा सी ए जोग करवा बिंदु बिंदु रखिक आगे मैच कर तापर जोग कर सी सहित ए आ सी सहित ए डैश तेणु मु दुईटी त्रिभुज पाइली मु लिखी अतएव ए बी सी ओ ए डैश बी सी उभय आवश्यक त्रिभुज तेणु मु त्रिभुज अंकन कली आउ थे कहीदे एटा किपरि तुम अंकन कर प्रथम कौन कली ना बीसी मुझे गली जो चित्र देती देख से रफ चित्र को देख रफ चित्र रे से जो बीसी ए बीसी त्रिभुज भूमि ताकू नहीं जावा केते स्मॉल ए जोटा से 8 सेंटीमीटर दे गली तापरे बी कोण बी बिंदु रे 60 डिग्री कोण अंकन कली अंकन करी बढ़ाई देली बढ़ाई सारा परे तापरे मु स्मॉल बी जोटा एससी एससी 7.1 नहीं कि चाप काटिली चाप काटिला परे ताहा दुईट बिंदु रे छेद कला गोटे हूँ ए बिंदु आ गोटे ए डैश बिंदु ए बिंदु ए डैश बिंदु तापरे सी ए आउ सी ए डैश को मु जोग कली जोग कर सारा परे मु पाइली ए बी सी त्रिभुज आ गोटे ए डैश बी सी त्रिभुज पिला माने एठी केते जण पचारि पर दुईटी त्रिभुज किपरि सृष्टि हैला हाँ मु आगुर कहिछि जे एठी कोन heiछि मु तुमको रफ रे टिके बुझेबा चाहूछि टिके देख ये रफ टाको हमर जदि देई थांदा जे दुईटी एबीसी त्रिभुज मानकर अच्छी यार दुईटी बाहु देई थांदा दत्त आउ गोटे कोण दत्त देथि कोण मनकर एटा 60 डिग्री एटा 7 सेंटीमीटर एटा 5 सेंटीमीटर तुम ए क्षेत्र रे समस्ते गोटे प्रकार चित्र पाई थांदा आउ ए क्षेत्र रे एटा होची गोटे सर्वसम्मतार कंडीशन से कंडीशन कोन कहंती बा को बा तेणु एठी द्वितीय नास्ति गोटे चित्र माने सेटा अंकन कर सारा पर आ गोटे चित्र पर पकेबो एक्जाक्टली कोइनसाइड करियो मिसी जीवो तेणु एटा होची कारणटा होची बाकोबा हमर सर्वसमरे जो चारटा कंडीशन अच्छी प्रथम होची बा 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 सर्वसमर कंडीशन दुई रे बाकोबा बाहु कोण बाहु तीन रे को बा कोबा को कहि परिबो बा कोकोबा कहि परिबो कोकोबा आ गोटे 4 रे सकबा समकोण कर्ण बाहु तेणु ये कंडीशन को आम नहीं कि त्रिभुज अंकन सहित यार संपर्क अच्छी तेणु ये 3टा बाहु देथिबो तुम त्रिभुज अंकन करि परिबो बा 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 जो त्रिभुज अंकन कला से त्रिभुज गुड़िक सब त्रिभुज गुड़िक एका तेणु एठी टिके व्यतिक्रम एठी होची कोन ना हमर देछि बा को ये जो कोणटा रही तेणु ये कंडीशन भितर नाही सेथिपाई आम एठी दुईटी त्रिभुज पाइले पिला माने देख परवर्ती प्रश्न स्लाइड को देख एठी अच्छी त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल बी 8.5 सेंटीमीटर स्मॉल सी 6 सेंटीमीटर आउ सी कोण 45 डिग्री ये त्रिभुजटा आम अंकन करवा बर्तमान रफ चित्र को देख रफ चित्र रे मु एबीसी त्रिभुज अंकन करछि बा सेठी त्रिभुज तैयारी करछि आउ सेठी सी
कोण जोटा 45 डिग्री उल्लेख करछि आ स्मॉल बी स्मॉल सी जोटा अच्छी सेटा भी देखी तमें अंकन करने पूर्व आगे रफ चित्रटी अंकन कर प्रकृत अंकन कर बर्तमान मु प्रकृत अंकन करी देख बोर्ड को लक्ष्य कर जे आम एठी नवा प्रथमे बीसी नवा 8 सेंटीमीटर जोटा स्मॉल ए 8 सेंटीमीटर नेबी देख स्केल रे 8 सेंटीमीटर काटिबी जो कंपास नेली 8 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर काटिबा तापरे ता ना देबी बी सी बी आउ सी सी बिंदु रे मु बर्तमान 30 डिग्री कोण अंकन करी देख 30 डिग्री कोण अंकन करी 60 रो अधा 60 डिग्री अंकन कली तार अधा 30 डिग्री कोण बिंदु को आगे जोग करिवो ठीक बिंदु पॉइंट दबो तापरे जोग करिवो ये सरला परे पुणी बी बिंदु रु मु 4.2 अंकन करी देख बी बिंदु रु 4.2 नेबी 4.2 नेली बर्तमान देख एठी मध्य मु दुईटी बिंदु पाइली एटा होची ए आ गोटे ए डैश एबे ए बी को जोग करिबा ए और बी को जोग करिबा आउ ए डैश जो अच्छी आउ बी को जोग करिबा ये दुईटी त्रिभुज पाइले जे दुईटी त्रिभुज पाइबार कारण मु तुमको आगुर कहिछि जे एटा होची सर्वसम त्रिभुज नुहे हम देखिबा अतएव ए बी सी ओ ए डैश बी सी उभय त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डैश बी सी उभय आवश्यकीय त्रिभुज आवश्यकीय त्रिभुज पे देख केमती कले आउ थे टिके कहीदे लक्ष्य कर बोर्ड को मुझे जो बोर्ड रे अंकन करछि प्रथमे बीसी नहीं जावा केते 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नहीं कि सी बिंदु रे आमे 30 डिग्री अंकन करबा 60 रो अधा अंकन करी बढ़े दबा तापरे ए बी जो देछि 4.2 परिमित चाप नहीं कि आमे काटिबा ता दुईटी बिंदु रे छेद करिवो ए और ए डैश तापरे ए को बी सहित ए डैश को बी सहित जोग कर दबा आमे एठार दुईटी त्रिभुज पाइले ता ना होछि ए बी सी और ए डैश बी सी पिला माने बुझिलो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को नेक्स्ट देख परवर्ती प्रश्न अछि हमर एट देख हाँ यहाँ हूँ परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न रे कौन अच्छी देख जे त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल बी 8.5 सेंटीमीटर आउ स्मॉल सी 6 सेंटीमीटर आउ सी कोण 45 डिग्री तार रफ चित्र देख ठीक से पूर्वपरी अति सहज तमें गोटे कर सारे आउ अन्य गुड़ाक सेपरी कर जे एबीसी त्रिभुज नि तार एसी को मु बी नहीं जोटा कि 8.5 से नब सी बिंदु 45 डिग्री कोण अंकन कर अंकन कर सारापर तापर ए बी अंकन कर बर्तमान ए अंकन करवा देख मुझे करुँची जे मु जो करुँची ड्राइंग सीट को देख प्रथमे आम रेखाखंड नवा नहीं सारापर आम तार जो एसी नवा 8.5 आम 8.5 काटी नवा देख 8.5 मुझे गली ता ना देली ए सी सी बिंदु 45 डिग्री कोण अंकन करवा 45 डिग्री केमती 90 अधा आगे 90 डिग्री करवा 60 तापर 90 करवा 90 कर सारा परे
तापर आमे ताकू अधा करवा अधा करले आमे पाइबा 45 डिग्री कोण 90 को अधा कर दवा अधा कर सारे देख मु 45 डिग्री कोण अंकन कली तापर ये भी 6 सेंटीमीटर नहीं जा 6 सेंटीमीटर मु मापिकी चाप नेली 6 सेंटीमीटर नहीं सारा पर देख ताहा दुईटी बिंदु छेद करुच्ची ना देवी बी आउ बी डैश वर्तमान जोग करदे ए को बी सहित पॉइंट आगे देखा प्रथमे तापर जोग करवा जोग कली तापर आउ गोटे पॉइंट दबा तापर जोग करवा आमे पाइगले चित्र टी देख ता ना दबा ए बी सी ओ ए बी डैश सी उभय उभय आवश्यक त्रिभुज ये दुईटी त्रिभुज पाइल तो पिला माने जे मु आउ थे कहीदे केमती कर चित्र को लक्ष्य कर प्रथमे एससी नहीं जीव 8.5 जो देची स्मॉल बी तापर सी बिंदु रे 45 डिग्री कोण अंकन करिवो अंकन कर साला परे ए बी जो अच्छी स्मॉल सी 6 सेंटीमीटर मापिकी चाप काटिबो तेणु चापटी से जो वर्धित जो सी कोणर जो वर्धित रेखाखंड को बी आउ बी डैश बिंदु रे छेद करिवो तापर बी को ए सहित बी डैश को ए सहित जोग करिवो आमे एठी दुईटी त्रिभुज पाइले गोटे हूँ ए बी सी आ गोटे ए डैश बी सी ये दुईटी त्रिभुज पाइले तेणु पिला माने तमे मु जो अंकन कली ताकू सब देखिल मु केमिति अंकन करुच्ची सेमती तुम अंकन कर अंकन बहुत सहज आउ अंकन रे फुल मार्क आसे तबे एटाकू केबे भी अंकन तुम परीक्षा छाड़ी आसब ना अन्य अंक बरंग टी कष्ट हो पारे किंतु अंकन जी थे शिखी से केबे भूल करिवो नाही तेणु आशा करुच्ची तमे अंकन भल बुझी आ परीक्षा मध्य भल करिवो आजिर समय शेष होईची आजिर कार्यक्रम को एट रखिबा धन्यवाद।